بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز تراویح کے بعد روزانہ ہم اور آپ ایک اہم عنوان کے مختلف پہلوؤں کو سنتے آ رہے ہیں۔ فی الوقت ہماری اور آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ ہے دین میں بدعات یا دین میں شبہات یا دین میں ڈاؤٹس یا دین میں کنفیوژن یا دین کے بارے میں لوگوں کے اندر بہت ساری جو غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ یعنی ایک ایسا آدمی جو اچھا خاصا ایمان والا دیندار آدمی کتاب و سنت کو جانتا ہے، اللہ کی بات رسول اللہ کی بات کو جانتا ہے، وہ کیسے جو ہے مختلف قسم کے شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیا چیزیں اس کا سبب بنتی ہیں، اس کا تذکرہ ہم جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کے درس میں ایک ایسا سبب آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں جس سبب کو صحیح ڈھنگ سے اگر ہم سمجھیں یا صحیح سے ہم استعمال کریں تو یہ خیر کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، اور اگر غلطی کریں تو پھر یہ ہم اور آپ کو گمراہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے، شر کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور وہ مسئلہ ہے کہ آدمی کی اپنی فطرت اور طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے جسے ہم تجسس کہتے ہیں۔ تجسس کس کو کہتے ہیں؟ کہ آدمی کے اندر یہ خیال ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، کہیں بھی کوئی بھی کچھ ہو رہا ہے آدمی کے اندر سے یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اسے جاننا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیں کہیں بھی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو گیا، بچانے کے لیے جانے والے کم، لیکن کیا ہوا ہے دیکھنے کے لیے لوگ جانا چاہتے ہیں۔ کہیں بھی کچھ نیا ہوا لوگ دیکھنے جانا چاہتے ہیں، کیا ہے یہ نیا، کیا ہے۔ کوئی بھی چیز آدمی کے سامنے آتی تو آدمی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، صحیح غلط بعد میں، لیکن آدمی کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہے تجسس، یعنی آدمی کھوجی طبیعت میں کھوجنے کا مزاج، تلاش کرنے کا، جانکاری حاصل کرنے کا ایک جذبہ اللہ تعالیٰ نے فطرت میں رکھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جذبہ ہے انسان کے جیسے دوسرے جذبات ہیں، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے جذبات رکھے، غصہ رکھا ہے، محبت رکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ڈر بھی رکھا ہے، امید بھی رکھی، کئی فی جذبات اللہ نے انسان کے اندر رکھے ہیں۔ انسان اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ان کو استعمال کرتا ہے اپنے ان جذبات کو، تو ان جذبات کا استعمال بھی بہت بڑی عبادت ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ آدمی کے اندر ڈر کی کیفیت ہے، اب اس آدمی کے اندر کا جو ڈر ہے اسے وہ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک چینل دیتا ہے، کس سے ڈرنا ہے، کیوں ڈرنا ہے، کس سے نہیں ڈرنا ہے، کیوں نہیں ڈرنا ہے۔ کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر اپنے ڈر کی کیفیت کو ایک ترتیب دے دیتا ہے تو پھر اس کا ڈر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت بن جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ اس تجسس کے بارے میں بھی دیکھیے۔ ایک آدمی ہے دین کے مسائل میں تلاش اور تحقیق جستجو کرنے کے لیے اپنی اس مزاج کو اپناتا ہے، صحیح کیا ہے میں معلوم کر کے رہوں گا، یہاں سے آدمی پر ہدایت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی اپنے کان بند رکھتا ہے، آنکھیں بند رکھتا ہے، کچھ سننا نہیں چاہتا، کچھ دیکھنا نہیں چاہتا، کچھ سمجھنا نہیں چاہتا، وہ اکثر ہدایت پر نہیں آتا۔ لیکن وہی ایک آدمی صحیح طریقے سے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی اس تجسس کو استعمال کرتا ہے تو پھر یہاں سے آدمی اپنے آپ پر ہدایت کے دروازے کھولتا۔ اور ویسے ہی کتاب و سنت میں جو باتیں ہیں آدمی ان کے بارے میں جتنا جاننا چاہتا ہے اتنا سیکھتا چلا جاتا ہے۔ وہی دنیا کے معاملے میں آپ جانتے ہیں دنیا کو ایکسپلور کرنا کہتے ہیں، یعنی کھول کر دیکھنا، دنیا کو اور زیادہ اندر تک جا کر دیکھنا، یہ سائنس ہے، یہ تحقیق ہے۔
इन दो मैदानों से हटकर एक तीसरा मैदान आता है, वो है एक गुमराही है, मालूम है गुमराही है। एक आदमी बिदाती है, मालूम है बिदाती है। एक आदमी के बारे में मालूम है कि वो आदमी कोई आलिम नहीं, किसी किस्म का गुमराह आदमी है, लेकिन यहां भी आदमी उसी मिजाज से चलना चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें क्या है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक वो आदमी जिसके सामने हक क्या है, हकीकत क्या है, गुमराही क्या है, मालूम नहीं, वो अभी तहकीक कर रहा है, तो वो हर चीज की तहकीक करेगा। उसके लिए सब चीजें वो ये भी देखेगा, वो भी देखेगा, सही पर भी शक करके देखेगा, गलत पर भी थोड़ी देर के लिए यकीन करके देखेगा, उसका मामला अलग है। लेकिन एक ऐसा आदमी जिस आदमी के सामने हक और हिदायत वाज़े है और दूसरी तरफ उसे मालूम है कि ये गुमराही है, आदमी फिर भी कहता है नहीं, मैं जाके झांक के देखना चाहता हूं, मैं खोद के देखना चाहता हूं, मैं मालूम करके देखना चाहता हूं। यहां से आदमी के दीन में शुबहात आते हैं, यहां से आदमी के अंदर गुमराहियां आने का दरवाजा खुलता है और यहां से आदमी के अंदर शुबहात पैदा होते हैं। इसीलिए आज जो सबब आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, दीन में शुबहात पैदा होने के, डाउट्स या कंफ्यूजन पैदा होने के जो असबाब हैं, उनमें से एक सबब यह भी है कि आदमी ये जो अपने अंदर की कैफियत है कि वो जानना चाहता है, इसको आजाद छोड़ दे। जो भी आया सबको देख रहा है, सबको जान रहा है, सबको जो है तलाश करना चाह रहा है, ये इस्लामी शरीयत की नजर में सही नहीं है। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरबियत फरमाई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी और आपकी तरबियत फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ियामत के करीब के ज़माने का जो तज़किरा उसका करते हुए कहा, सतकूनु फितन। अल्लाह के नबी ने कहा फितने आएंगे बाद के ज़माने में। अल्लाह के नबी ने कहा, अल-क़ाइदु फ़ीहा ख़ैरुम मिन अल-क़ाइम। बैठा हुआ आदमी उन फितनों के दौर में बैठा अपनी जगह पे, वो खड़े हुए आदमी से बेहतर है। वल-क़ाइमु फ़ीहा ख़ैरुम मिन अल-माशी। और खड़ा हुआ आदमी चलने वाले आदमी के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है। और आगे अल्लाह के नबी ने कहा, मन इस्तशरफ़ लहा इस्तशरफ़तहु। जो आदमी इन फितनों को झांक कर देखना चाहता है, ये फितने उसे उचक लेते हैं, उसे कैच कर लेते हैं, उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस हदीस को आप समझिए, अल्लाह के नबी ने हमारी और आपकी क्या तरबियत की। तहकीक का अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, मालूमात हासिल करने का, जानकारी, ये सब अल्लाह के नबी के हुक्म है। लेकिन ये फितनों के मामले में नहीं। जो फितने, जो बिदातें, जो गुमराहियां, आदमी को मालूम है ये आदमी बिदाती, आदमी को मालूम है ये आदमी गुमराह, लेकिन आदमी फिर भी कहता है नहीं, मैं देखना चाहता हूं वो क्या बोलता है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे बोलता है, मैं देखना चाहता हूं वो कैसे जो लोगों को गुमराह करता है। अल्लाह के नबी ने कहा यह तरीका नहीं, इसमें चलने वाले के मुकाबले में खड़ा हुआ आदमी बेहतर है और खड़े हुए आदमी के मुकाबले में बैठा हुआ आदमी बेहतर है। यानी इन फितनों से आदमी जितनी दूरी बना के रखता है उतना अच्छा है। और आखिरी लफ्ज जो अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान फरमाया बड़ा अहम है, कहा मन इस्तशरफ़ लहा इस्तशरफ़तहु। अब कोई आदमी झांक कर देखना चाहता है, सही सालिम वापस नहीं आता, वो फितने उसे उचक लेते हैं, उसे कैच कर लेते हैं, उसे अपना शिकार बना लेते हैं। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। आज आप ये बात बताइए, क्या हमारे और आपके अंदर ऐसी मिसालें नहीं हैं कि बहुत सारे लोग शुरू में बाज गुमराह लोगों को, बाज बिदातियों को शौक में सुनना चाहते हैं, क्या बस देखना चाहता हूं, लोग बहुत बोलते हैं उसके बारे में, मैं देखना चाहता हूं क्या बोलता है। एक वो आदमी जिसे मालूम नहीं मैं सही हक पर हूं कि बातिल पे हूं, शक है, वो ये सोचकर देखता है कि पता नहीं मैं गुमराही पे हूं, वो हक पे होगा। इसका मामला अलग है कि इसे अभी ईमान की दौलत, यकीन की दौलत नहीं मिली। लेकिन एक आदमी जिसे मालूम है कि किताब और सुन्नत की तालीमात पर, सही अकीदे पर, सही मनहज पर, सही दीन पर मैं हूं, लेकिन बस शौक के लिए किसी को देखना चाहता है, जानना चाहता है। इस्लामी शरीयत में बताया गया बिदातियों, गुमराहों, फितनों, इनके बारे में ये अंदाज अपनाना ये सही नहीं है और यहीं से आदमी के दीन के अंदर शुबहात आते हैं। देखिए, एक मसला याद रखिए, इल्म हमेशा बेहतर है, लेकिन बाज जहालतें इल्म से ज्यादा बेहतर होती हैं। बात चीजों को नहीं जानना उनके जानने से ज्यादा बेहतर होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल उलमा ये देते हैं, आदमी की मौत का वक्त। लोग यही समझते हैं कि आदमी की मौत का वक्त मालूम हो गया तो इंसान तैयारी कर लेगा। नहीं, मौत का वक्त अगर आदमी को मालूम है आज के 20 साल के बाद फला तारीख को तुम मरोगे, आज से जीना छोड़ देगा आदमी। आज से आदमी जी, अभी हालांकि कल परसों का वक्त नहीं,
20 साल बाद का वक्त उसे बताया जा रहा है, मान ले कि फलां तारीख को आज से 20 साल के बाद मरोगे। कम ऐसा होगा कोई कि अभी 20 साल मेरी जिंदगी में है नहीं, वो जब मौत का वक्त है, करीब आती घड़ी, वक्त मुतय्यन मालूम हो जाए तो आदमी आज से ही जीना छोड़ देता। इसीलिए उलमा कहते हैं कि बाज जहालतें, बाज ला इल्मिया इल्म से ज्यादा बेहतर होती हैं आदमी को। और ऐसी ही बात उलमा ने जादू वगैरह के बारे में कही। जादू का इल्म एक इल्म है, लेकिन ये इस इल्म से जाहिल रहना इस इल्म के आलिम होने से ज्यादा बेहतर है। ऐसे ही ये बात याद रखें, जब फितने उठते हैं ना, तो उन फितनों से नावाकिफ रहना ये अक्लमंद होने की अलामत। उसका फितना क्या है, वो क्या बोलता है, एक आम मुसलमान, एक आम आदमी के लिए उससे नावाकिफ रहना, उससे दूर रहना, उससे जाहिल रहना ज्यादा बेहतर है। क्यों? इसलिए कि ये फितने आदमी को गुमराही में मुब्तला कर सकते हैं। आप ये बात देखें, इंसानी मिजाज और इंसान के दिलो दिमाग पे जो रिसर्च होती है ना, उसमें एक बात बड़ी पते की बताई गई। वो क्या है? कहते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक अगर है, उस टॉपिक से मुताल्लिक सबसे पहला जो इंफॉर्मेशन आदमी को मिलती है, सबसे पहली मालूमात आदमी के पास आती हैं, वो आदमी के पास सबसे ज्यादा जमकर बैठती हैं और उनसे पीछा छुड़ाना भी आदमी के लिए ज्यादा मुश्किल होता है। अब अल्लाह की मर्जी से, किस्मत से, अगर वो सही मालूमात पहले मरहले में आते, मुझे कुछ नहीं मालूम किसी के बारे में, मान लीजिए आप ही के बारे में, आप में से किसी भाई के बारे में, इसी भाई के बारे में, उसी भाई के बारे में, किसी के बारे में कुछ नहीं मालूम, फर्स्ट इंप्रेशन, पहली मालूमात आपके बारे में मुझे अच्छी मिली, मेरी राय आपके बारे में अच्छी बन जाएगी। अब आसानी से मेरी इस अच्छी राय को आप बदल नहीं सकेंगे। आप उनकी 2-4 शिकायतें भी करेंगे तो पहला इंप्रेशन जो है वो आसानी से नहीं तब्दील होगा। इसके बरक्स आप बहुत अच्छे आदमी होंगे, लेकिन आपका मेरा साबका पड़ा, पहली ही बार में आपका तासुर मेरे पास गलत आ गया। फर्स्ट मालूमात, पहला इंफॉर्मेशन जो भी आपका मेरे पास आया, वो अगर गलत है और मैं आपके बारे में एक राय कायम कर लिया आप गलत हैं, और फिर इसे बदल कर वाकई आप अच्छे हैं, ये मानने में आदमी को बहुत मुश्किल होती। इसीलिए बात याद रखें, फितनों का बड़ा मसला क्या होता है मालूम? फितने आमतौर पर दीन के ऐसे मसाइल में लोग उठाते हैं जिनका लोगों के दीन से आमतौर पर ताल्लुक नहीं होता। मैं एक मिसाल आपको देता हूं। आज के दौर में आप जानते हैं, यूट्यूब पर एक इंजीनियर है, इंजीनियर मिर्जा के नाम से, उसने जो है जंगे जमल और जंगे सिफीन के मसले को सबसे ज्यादा लोगों के सामने हाईलाइट किया। आमतौर पर उलमा का मसला यह है कि उलमा किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में बात करते हैं। अल्लाह ने कहा वलाकिन कुनू रब्बानियीन, अल्लाह ने कहा तुम रब्बानी बनो। रब्बानी किसे कहते हैं? इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा ने कहा वो जो लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताने से पहले दीन की बुनियादी और छोटी छोटी बातों से आगे लेकर जाता है। आज की एक आम मुसलमान की जरूरत उसका ईमान, अकीदा, उसकी अपनी नमाज, उसकी तहारत, उसके मसाइल, उलमा ये सिखाते हैं, इसी में एक आदमी की जिंदगी निकल जाती। इसीलिए उम्मत का इजमा है इस मसले पर कि अगर कोई आदमी ये नहीं जानता कि जंग जमल क्या है, जंग सिफीन क्या है, नहीं जानता और उसे मालूम भी नहीं कुछ भी, इसी पे इंतकाल कर गया, क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं पूछेगा तूने जंगे जमल के बारे में क्यों मालूम नहीं किया, जंगे सिफीन के बारे में क्यों मालूम नहीं किया, ये अल्लाह ताला नहीं पूछेगा। ऐसे दीन में और तारीख में बहुत सारे मसाइल हैं जिनका आम तौर पे तज़किरा नहीं किया जाता। अब क्या हुआ देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक ऐसा मसला जिस मसले पे आम तौर पे उलमा ने लोगों के सामने गुफ्तगू नहीं की, और इसलिए नहीं की कि ये आदमी के दीन और ईमान का बुनियादी मसला नहीं, और ये वो मसला भी नहीं कि अगर उससे ना वाकिफ रहा तो उसका ईमान कम पड़ जाए, ऐसा मसला नहीं है, इसलिए उलमा ने नहीं बताया। तो क्या हुआ, इंजीनियर ने सबसे पहले इस मसले को हाईलाइट किया और इस मसले को गलत एंगल से कि ये सहाबा की दुश्मनी है, सहाबा एक दूसरे के दुश्मन है, हजरत अली और हजरत मुआविया की ये दुश्मनी है, और हजरत अली की दुश्मनी की वजह से हजरत मुआविया ऐसे हैं वैसे हैं, ढीले ढाले मुसलमान हैं, और उसके बाद शागिर्दों ने नऊज़ु बिल्लाह यहां तक कह दिया कि मुनाफिक हैं। गलत इंफॉर्मेशन जंगे जमल, जंगे सिफीन के बारे में आदमी के दिमाग में सबसे पहले आई। आम नौजवान जो आप देखते हैं, उन्होंने इस मसले में सही अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़, किताब और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में तमाम अहादीस को इकट्ठा करके इस जंग के बारे में अहले सुन्नत का स्टैंड क्या है ये नहीं जाना,
फर्स्ट इंप्रेशन कहिए या फर्स्ट इंफॉर्मेशन कहिए, वही लिया जो इंजीनियर ने दिया। और उसका नतीजा यह है कि आज एक अच्छी खासी तादाद ऐसे नौजवानों की है जो नौजवान अपने दिल को सहाबा के बारे में साफ नहीं पाते। वो कोशिश करते हैं तो भी उनके दिल में शुकूक व शुबहात। आप उनसे बात कीजिए, वो कहते हैं, सवाल करते हैं, कहते हैं कि बातें अब उलमा जो बता रहे हैं वो समझ में आ रही, लेकिन सवाल बहरहाल बाकी रह गया हमारे दिमाग में। क्यों? इसलिए कि पहला जो तासुर उसके दिमाग में बिठाया गया, गलत तासुर बिठाया गया। इसीलिए इस्लामी शरीयत में यह बात कही गई है कि जब आप अहले सुन्नत वल जमात के मुहद्दिसीन किराम के मुत्तफक अलैहि मौकिफ को जानते हैं कि हम सहाबा के दरमियान जो भी जंगें हुई उनके बारे में हम अपनी जबान, अपने कलम, अपने दिमाग को घुसाएंगे नहीं। हम कहेंगे वो मुजतहिद थे, अल्लाह ताला के पास दोनों में से कोई भी गुनहगार नहीं था, इसमें दीनो ईमान की सलामती है। लेकिन इससे हटकर जब जाके लोगों ने खिलाफ वर्जी की तो पहला इंफॉर्मेशन गलत आया। यही वजह आज बहुत सारे लोगों के दिलों में सहाबा की अजमत और सहाबा के बारे में जो ईमान होना चाहिए वो नहीं रह गया है। ये मिसाल है इस बात की कि एक आदमी खामखा किसी फितने को झांक के देखने जाता है तो फिर उसका शिकार होता है। देखो, यही तरबियत अल्लाह के नबी ने हजरत उमर की। क्या हुआ आप जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके गए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरू में अभी मुसलमान हिजरत करके आए थे, यहूदियों से पहले मेलजोल हुआ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हजरत उमर इब्न खत्ताब, सहाबा में जो पढ़ना लिखना जानते थे, जो बाकायदा लिखना पढ़ना बहुत कम थे, हजरत उमर उनमें से थे जो पढ़ते थे। हजरत उमर गए, यहूदियों की किताब लेकर आए, तौरात लेकर आए और आकर अल्लाह के नबी के सामने बड़े शौक से पढ़ पढ़ के सुना रहे। तौरात जो आसमानी किताब थी लेकिन तहरीफ कर दी गई थी, उसमें हजरत उमर अल्लाह के नबी के सामने पढ़ पढ़ के सुना रहे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ वो देखने नहीं, वो किताब देखने में लगे हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है। ये मंजर दूसरे सहाबा देख रहे, उन्होंने हजरत उमर को टोका, हजरत उमर को टोका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा तो हजरत उमर परेशान हो गए और कहने लगे, अल्लाह के नबी, रदीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह ताला से राजी हूं। अल्लाह के नबी ने उस वक्त जो हजरत उमर से कहा वो जो है समझने की बात। अल्लाह के नबी ने कहा, अमुतहव्विकुन अंतुम या इब्नल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे, क्या तुम हलाकत और बर्बादी में गिरना पड़ना चाहते हो? यहां अहले इल्म ने एक बात कही, अल्लाह के नबी ने क्यों यहूदियों की किताब या तौरात पढ़ने से मना क्यों किया अल्लाह के नबी? हालांकि बाद में जाकर अल्लाह के नबी ने कहा, वहद्दिथु अन बनी इसराइल की रिवायतें रिवायत कर सकते हो, इजाजत दी। लेकिन इस मौके पे अल्लाह के नबी ने क्यों मना किया? तो कहा अभी मुसलमान नए नए थे, इस्लाम नया नया था, मदीने में हिजरत करके अभी नए नए थे, नए जमाने ही में ये सारी यहूदियों की किताबें सब पढ़ेंगे, उनका फितने में मुब्तला हो जाने का इम्कान बहुत ज्यादा है। इसलिए अल्लाह के नबी ने डांट दिया, मना कर दिया। और यहां तक अल्लाह के नबी ने कहा, इब्नुल खत्ताब याद रखो, तुम तौरात ला के यहां पढ़ने की बात कर रहे हो, अगर मूसा भी इस वक्त आ जाएंगे तो उनको भी मेरी ही सुननी पड़ेगी, मेरे ही नक्शे कदम पे मूसा को चलना पड़ेगा। अगर मूसा जिंदा होते, आज के दिन अगर मूसा जिंदा होते तो उन्हें मेरी इत्तिबा के अलावा कोई चारा ना होता। अल्लाह के नबी ने यह बात कही। मालूम क्या हुआ? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कभी यह महसूस किया कि दूसरी किसी चीज को देखने, पढ़ने, सुनने से दीन में शुबहात पैदा हो सकते हैं, फितने पैदा हो सकते हैं, हजरत उमर वही तजस्सुस की वजह से गए थे। ये देखे कि यहूदियों की किताब में क्या लिखा है वो देखने के लिए गए थे। अल्लाह के नबी ने मना किया, हालांकि उस किताब की असल आसमानी किताब, वो तौरात जो है वो असल में आसमानी किताब है, बस यहूदियों ने उसमें तहरीफ कर दी थी। अल्लाह के नबी ने मना किया उसके पढ़ने से। आप ये बात याद रखें कि कई बार ऐसा होता है कि ये तजस्सुस आदमी को ले जाता है ऐसे लोगों के पास जो भटके हुए हैं, जो गुमराह हैं, और फिर उस तजस्सुस के हाथों आदमी शुबहात का शिकार हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, सहाबा किराम रिजवानुल्लाह तआला मजमईन और ताबीन, तबे ताबीन का मामला तो इससे भी आगे था। आगे की बात के दिनों में वो क्या था? वो इल्म वाले भी होते तो बिदअतियों को सुन्नी में तजस्सुस के मसले को दबा के रखते। हजरत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ताबीन में से हैं, उनके पास दो आदमी आए, कहने लगे हम आपको कुछ सुनाना चाहते हैं। हजरत इब्न सीरीन ने कहा मैं नहीं सुनना चाहता। उन्होंने कहा कुरान की आयत सुनाएंगे? कहा मैं नहीं सुनूंगा।
انہوں نے کہا قرآن کی آیت ہی تو سنا رہے، سننے میں کیا ہے؟ حضرت ابن سیرین نے کہا یا تو تم لوگ اٹھ کے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں گا، یا تم اٹھ کے جاؤ یا میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی چارہ نہیں تو دونوں کے دونوں مایوس ہو کر واپس لوٹ گئے۔ اہل علم نے یہاں ذکر کیا ہے کہ ابن سیرین بڑے جلیل القدر عالم، کبار تابعین میں سے بڑے اونچے درجے کے تابعی، لیکن اس سب کے باوجود ان کا کہنا یہ، ان کا ماننا یہ اللہ کے نبی کی ہدایات کے مطابق۔ جب آپ کے سامنے ہدایت واضح ہے تو گمراہی کو جھانک کر دیکھنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں سے شبہات آدمی کے اندر آتے ہیں، یہاں سے آدمی کے اندر گمراہیوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے مطابق آدمی کے اندر شبہات جو پیدا ہوتے ہیں، شبہات کے پیدا ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے تجسس کو بے لگام چھوڑ دے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق کہاں تحقیق ہونی چاہیے، کون سا مسئلہ تحقیق کا نہیں ہے، بلکہ ان سے اعراض کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے، یہ فرق نہ کرے تو یہاں سے آدمی اپنے آپ کو شبہات پہ مبتلا کرتا ہے۔ اور آج جو بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، ہمارے اور آپ کے دور میں نوجوانوں میں جو شبہات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک وجہ بے لگام تجسس۔ تحقیق ایک الگ چیز ہے اور بے لگام تجسس ایک الگ ہے، اور یہ بے لگام تجسس آدمی کے اندر شبہات پیدا کرتا ہے اور آدمی کو بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ تو آج کے درس میں اور زیادہ باتیں آگے لے کر نہیں جانا چاہتا، آج کے درس میں اپنے آپ کو ہم یہیں روک لیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شبہات کے یہ جو اسباب ہیں، گمراہی کے یہ جو اسباب ہیں، ان کو پہچان کر ان سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔